Hello students, welcome to online classes of Kerala Public School. This is me, Narendra Kumar, and I welcome you. Today we will continue our 13th chapter, Surface Area and Volume of class 9th, and in this video we will discuss about exercise 13.7. This exercise is based on volume of a cone. So let's start. Let me read question number first. In this question, we have find the volume of right circular cone with radius 6 centimeter and height 7 centimeter. And in second part, we are given radius as 3.5 centimeter and height 12 centimeter. Got it? सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन और उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो आई होप आप सब ने याद किया होगा. जो वॉल्यूम था हमारे पास कॉन के लिए वो होता था 1/3 पाई स्क्वायर एच. समझ गए बच्चे? तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे. पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7. रेडियस ऑलरेडी गिवन है, हाइट भी गिवन है. वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. तो आइए सॉल्व कर लेते हैं. एक पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक पार्ट फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा. ओके, हियर यू कैन सी द रेडियस ऑफ दिस राइट सर्कुलर कॉन दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. ओके, and the formula to find volume of cone that is equal to 1/3 pi r square s. So we are going to put the respective value of pi, r and h. So it should equal to 1/3 multiply 22/7 multiply 6, which is the value of radius, multiply 6 multiply 7, where 7 is the value of height. So we got 264 cubic centimeter after simplifying this. Okay, so the volume of this cone that is equal to 264 cubic centimeter. Got it? So second part of this question, now you can solve. Just put the value of radius and height in the formula to find volume of right circular cone and simplify it. Now let's talk about question number second. In this question, what we have, find the capacity in liters of a conical vessel with radius 7 centimeter, and here we are given slant height that is L. And make sure you remember that the relation between L, H and R is equal to L is equal to स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. स्लैंट हाइट जो होती है वो किसके इक्वल होती है? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के. तो यहाँ से देखो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम कितना होता है बच्चे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कॉन के लिए. ओके, तो अगर हमें कॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहिए तो हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी और एच की ज़रूरत पड़ेगी. इसका मतलब हमारे पास रेडियस होना चाहिए और परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे स्लैंट हाइट का वैल्यू गिवन है. तो सबसे पहले हम इस रिलेशन का यूज़ करते हुए एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का यूज़ करके हम यहाँ से जो परपेंडिकुलर हाइट है एच उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं. इसका भी फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, सेकेंड पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Here you can see that this is a right circular cone in which the radius given 7 centimeter and its slant height L is given 25 centimeter. Okay, and we need to find its volume. So first of all we will find perpendicular height, and let me show you how we will find out. As you know, L is equal to square root h square plus r square. Now we will take square both sides, so it should equal to L square is equal to h square plus r square. क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? r को ट्रांसपोज करेंगे. सो here we got h square is equal to L square minus r square and h is equal to square root of L square minus r square. गॉट इट? सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने यूज़ किए हैं. तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. एल का वैल्यू है बच्चे 25. 25 स्क्वायर बिकम 625 एंड 7 स्क्वायर बिकम 49. सो द डिफरेंस ऑफ 625 and
49 is equal to 576 and square root of 576 is equal to 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू आ गई और वो कितना है बच्चे 24 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। So volume of this conical vessel, it's would equal to 1/3 pi r square h. Now we have radius that is equal to 7 centimeter and perpendicular height recently we got that is equal to 24 centimeter. So here we got 1/3 multiply 22 by 7 multiply 7 multiply 7 multiply 24 and that is equal to 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप इसका कैपेसिटी जो है वो लीटर में बताइए। गॉट इट। और यहाँ से आपको पता है कन्वर्सन यूनिट क्या थी हमारे पास, जो कन्वर्सन फैक्टर होता है वो है आपके पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1000। सो इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे टू गेट अवर आंसर इन लीटर दैट इज इक्वल टू 1.232 लीटर्स। तो जो कॉनिकल वेजल है इसकी कैपेसिटी आपको मिल गई और वो कितनी है बच्चे 1.232 लीटर्स। गॉट इट। इसी तरह से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं ये हाइट गिवन है और ये स्लंट हाइट गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में रेडियस गिवन था लेकिन यहाँ पे हाइट और स्लंट हाइट गिवन है। तो यहाँ पे आपको रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट किया जाएगा और इसके बीच जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। समझ गए बच्चे। इसका यूज करके आप रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक about next question, that is question number 3rd. Okay, in this question we are given the height of a cone is 15 centimeter, height दे दिया। ठीक है, इसके साथ में क्या दिया गया है, if its volume is 1570 cubic centimeter, साथ में वॉल्यूम भी दे दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। हमें रेडियस फाइंड आउट करना है बेस का, ये रेडियस कितना है और हमें जो पाई की वैल्यू इस बार यूज़ हम करने जा रहे हैं वो है 3.14। आइए सॉल्व कर लेते हैं। सो हम देखते हैं कि ये हमारे पास वो राइट सर्कुलर कोन है जिसमें जो परपेंडिकुलर हाइट गिवन है वो कितना है बच्चे 15 सेंटीमीटर, साथ में इसका वॉल्यूम गिवन है वो है 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। गॉट इट। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये जो 1570 है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का कौन का उसके इक्वल पुट कर लेते हैं और जो हम वैल्यू हमारे पास हैं हम उनको रेस्पेक्टली पुट करेंगे। सो 1/3 मल्टीप्लाई इंस्टेड ऑफ पाई वी आर गोइंग टू पुट 3.14 दिस टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था लास्ट क्वेश्चन में हमने पाई का वैल्यू 22/7 पुट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या पुट कर रहे हैं 3.14 क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 एंड दैट इज इक्वल टू 1570। समझ गए बेटा। इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे और यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 1570 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 1570। अब ये 100 कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये है 15.70। गॉट इट। और ये एक डेसिमल फॉर्म है तो इसको आप क्या करेंगे, अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 1570 डिवाइड बाई 100 और फिर क्या करना है उसको ट्रांसपोज करना है। सो वी गॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 1570। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है। सो वी गॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है तो 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा 10 का। तो आप इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर हमें मिल गया है। समझ गए आप सभी, जो कि इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। In this question we have if the volume of a red circular cone of height 9 centimeter is 48 pi cubic centimeter। ध्यान दीजिए ये पाई में ही गिवन है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल, तो बेटा इसमें आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई को पाई ही रखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ बेस। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है उसके इक्वल 48 पाई
क्यूबिक सेंटीमीटर को रखना है, हाइट का वैल्यू पुट करेंगे 9 सेंटीमीटर और सॉल्व करके आपके पास रेडियस का वैल्यू आएगा। और जैसे ही आप रेडियस का ट्वाइस कर देंगे तो आपके पास किसका वैल्यू आ जाएगा, डायमीटर का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कोई कॉनिकल पिट है और उसका जो टॉप है वो कितना है, 3.5 मीटर डायमीटर है उसका, और इसके साथ में जो डेप्थ है उसकी वो कितनी है, 12 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द कैपेसिटी। कैपेसिटी हमें इसके लिए फाइंड आउट करनी है और वो किस में फाइंड आउट करनी है, किलो लीटर्स में। ओके, समझ गए बच्चे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरह से हमारे पास एक कॉनिकल पिट है और उसका जो डेप्थ है वो है 12 मीटर और जो रेडियस है वो कितना है, 1.75। हालांकि क्वेश्चन में जो गिवन है वो डायमीटर है, तो डायमीटर 3.5 का आप हाफ करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा 1.75। समझ गए बच्चे। तो रेडियस है इस पिट का 1.75 और इसके साथ में जो डेप्थ है वो कितना है, वो है 12 मीटर। ओके, क्योंकि ये कौन की शेप में है तो इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए, जो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो उसको हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। अब देखो एच का वैल्यू है, जो डेप्थ है वो है 12 मीटर और जो रेडियस है वो है 1.75 मीटर। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो एज यू कैन सी here we got it is equal to 1/3 multiply 22/7, रेडियस का वैल्यू 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 और इसके साथ में डेप्थ का वैल्यू 12 मीटर। इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपको जो आंसर मिलता है वो कितना मिलता है, 38.5 क्यूबिक मीटर। गॉट इट। और क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था अपना आंसर किस में, किलो लीटर में, तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसको किलो लीटर में चेंज कर देंगे। अब चेंज कैसे करते हैं, 1 क्यूबिक मीटर में आपके पास कितना लीटर होता था, आपके पास 1000 लीटर होता था। ओके, आप सभी को याद होगा, जो कि किसके इक्वल है, 1 किलो लीटर के इक्वल है। तो जितना आंसर हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर में आया था 38.5, वो ही आंसर आपके पास किलो लीटर में आ जाएगा। समझ गए। सो ये है कैपेसिटी इस कॉनिकल पिट की। Now we have question number 6 to solve, and in this question what we have, let us read. The volume of a right circular cone is 9856 cubic centimeter, 9856 cubic centimeter. If the diameter of base is 28 centimeter, अगर जो डायमीटर का बेस है, जो बेस का डायमीटर है सॉरी, वो कितना है, 28 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ दिस कॉन, उसके बाद स्लेंथ हाइट ऑफ दिस कॉन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉन। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे। हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो, इसको हम पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल, क्योंकि ये क्या दिया गया आपको, वॉल्यूम दिया गया है। समझ रहे हैं आप सभी। और इसके साथ में आपको डायमीटर दिया गया है 28, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 28 का हाफ कर लेंगे, 14 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में जब आप देखते हैं तो आपको किस किस का वैल्यू चाहिए, पाई का 22/7 आप पुट कर लेंगे। रेडियस जो है वो कितना है, 14। तो यहाँ से आप एच का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा, 9856 के। समझ रहे हैं आप सभी। और यहाँ से रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करने के साथ में ही आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट की वैल्यू आ जाएगी इस कॉन की, कि हाइट हमारे पास कितनी है। और जैसे ही आपके पास एच की वैल्यू आती है, आर तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो 14 है। एच की वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एच और आर का यूज़ करते हुए फिर आप एल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज वी नो दैट एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ गए बच्चे। तो यहाँ से आप स्लेंथ हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे इस कॉन का सी एस से। और सी एस से क्या होता है बेटा, सी एस से होता था कॉन के लिए पाई आर एल। तो यहाँ से पाई का वैल्यू पुट कीजिए, रेडियस का वैल्यू पुट कीजिए, जो कि आपको पता है 14 सेंटीमीटर, 28 का हाफ, और इसके साथ में स्लेंथ हाइट जो कि आपने सेकंड पार्ट में फाइंड आउट की है। तो इनका वैल्यू पुट कीजिए करके और इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर बता सकते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट के लिए आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए
right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, 5 सेंटीमीटर हैं, 12 सेंटीमीटर हैं और 13 सेंटीमीटर। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की साइड्स के चारों तरफ उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और इस तरह से एक जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, कौन बनेगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन। तो जो ये सॉलिड बना है, ये कौन सा सॉलिड बना है, कौन। और कौन का आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। समझ गए बेटा। आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। एक ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केल का यूज करते हुए। उसमें एक साइड रखिए आप 5 सेंटीमीटर, एक रखेंगे 12 और एक रखेंगे 13 सेंटीमीटर। ओके, और उसमें जो 12 सेंटीमीटर है उसको होल्ड करके और जो आपके पास ये फिगर है उसको चारों तरफ आप घुमा के देखिए तो आपको इस तरह से फील होगा कि ये जो सॉलिड जो आपको फिगर बन रही है वो कौन सी है, कौन है। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन। और इसमें हमें क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो गया बच्चे, 5 सेंटीमीटर। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि जब आप एक जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल को 12 सेंटीमीटर साइड के चारों तरफ जब आप रोटेट करते हैं तो आपको जो सॉलिड मिलता है वो कौन सा मिलता है, कौन। और उस कौन के डायमेंशन अभी आप देख पा रहे हैं। तो ये है आपके पास राइट ट्राइंगल जिसमें आपका परपेंडिकुलर था 12 सेंटीमीटर, बेस था 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू थी वो थी 13 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ इसको क्या किया है, रिवॉल्व किया गया है। तो जो फिगर बन के आया है सॉलिड वो क्या बन के आया है, कौन। और इस कौन में जो रेडियस है बेस का वो है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट है बच्चे कितना, 12 सेंटीमीटर और स्लंट हाइट जो बना वो कितना बना, 13 सेंटीमीटर, जो कि रेस्पेक्टिव वैल्यू थी हमारे पास किस चीज़ की, बेस, परपेंडिकुलर और हाइट की। ओके, hypotenuse, sorry. So now let's find the volume, and volume we will find by using the formula 1/3 pi r square s। So 1/3 pi, r का वैल्यू है बच्चे 5 × 5 और साथ में s का वैल्यू है 12। So here we got 100 pi cubic सेंटीमीटर। तो ये जो सॉलिड बना है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। आप चाहे तो यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर तब भी करेक्ट होगा। अगर आप पाई में भी छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। हियर वी हैव, इफ द राइट ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7। बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल ABC था, अबाउ इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, उसको 5 सेंटीमीटर साइड के चारों तरफ अगर घुमाया जाए, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। जो वो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए। तो सॉलिड कौन सा बनेगा आपके पास, कौन ही बनेगा। और इसके साथ में क्या फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में जो आपको 2 सॉलिड्स मिले हैं, कौन से हैं, दोनों कौन ही हैं, उनका क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन भी और देखते हैं कि इस बार हमारा जो वॉल्यूम जो है वो कितना आता है। तो बच्चे, अगर हम इस राइट ट्राइंगल ABC को, जिसमें हमारे पास एक साइड थी 5 सेंटीमीटर, एक थी 12 और एक थी 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो इस बार जो हाइट है हमारा वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और इसके साथ में जो रेडियस है वो कितना बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, यही 2 चेंजेस इसमें आने वाले हैं, क्योंकि स्लंट हाइट जो है वो तो अभी भी 13 बनेगी इस कॉन के लिए, लेकिन परपेंडिकुलर हाइट हो गया इस बार हमारे पास 5 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया बच्चे कितना, 12 सेंटीमीटर। तो आइए फाइंड आउट करते हैं इसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए, वॉल्यूम हो जाना चाहिए 1/3 पाई r स्क्वायर एस। सो इट शुड इक्वल टू 1/3 पाई, और इस बार r का वैल्यू आपके पास 12, तो इट शुड इक्वल टू 12 × 12 × 5। 5 क्या है बच्चे, 5 है इस बार हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट। इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके हमें जो आंसर मिला वो कितना मिला, 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम कॉन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन वी गॉट इन क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास वॉल्यूम था कॉन का वो था 100 पाई, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास वॉल्यूम आया वो है 240 पाई। ओके, सो इट शुड इक्वल टू, जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो आप देख सकते हो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा,
कैंसिल आउट आप कर सकते हो। और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 5 आ जाएगा, 24 को करेंगे 12 आ जाएगा। तो रेशो कितना है, जो रिक्वायर्ड रेशो है वो है 5:12। समझ गए बेटा, ये है आपके पास रेशो ऑफ वॉल्यूम्स। क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9. Let me read. In question number 9, here we have a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Okay. So find the area of canvas required. आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि अनाज का कोई एक ढेर है और वो जो ढेर है वो किस शेप में है बेटा, कॉन शेप में है, जिसका डायमीटर है बेस का 10.5 सेंटीमीटर और हाइट है कितना 3 मीटर, सॉरी 10.5 मीटर है ये, और हाइट है बच्चे 3 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के साथ में अब आपको क्या करना है, ये जो अनाज का जो ढेर है इसको हमें कवर करना है और उसके लिए कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ये पता करना है कि कितना कैनवास हमें चाहिए होगा इसको कवर करने के लिए। तो देखो अगर इसको कैनवास से हम कवर करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या कवर होगा, इसका जो ये आपके पास हीप ऑफ वेट है इसका CS से कवर होगा। समझ रहे हैं आप सभी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, और उसके लिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं जो बेस का डायमीटर गिवन है उससे रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं इस हीप के लिए। तो रेडियस कितना आ गया 10.5 का हाफ करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा 5.25 मीटर, और हाइट जो थी इस कॉनिकल हीप की वो है 3 मीटर। तो लेट्स फाइंड वॉल्यूम ऑफ हीप। वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर का वैल्यू पुट करेंगे 5.25 और एच का वैल्यू हम पुट करेंगे 3 मीटर। इसको बच्चे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके जो आंसर हमें मिल रहा है वो है 86.625 क्यूबिक मीटर। तो ये तो हो गया इस कॉनिकल हीप का वॉल्यूम। समझ रहे हैं ना बेटा सभी आप। वॉल्यूम की वैल्यू जो है कितनी आ गई 86.65 क्यूबिक मीटर। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, और एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड किसके इक्वल होगा, CSA ऑफ कॉन, जैसा मैंने बोला था। लेकिन अगर हम CSA फाइंड आउट करते हैं किसी भी कॉन का, तो CSA फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला वो होता है वो है पाई आर एल। तो इसमें देखो किस किस का वैल्यू चाहिए, पाई का चाहिए, आर का चाहिए और साथ में एल का चाहिए। लेकिन अब हम खुद से पूछते हैं क्या हमारे पास पाई का वैल्यू है, जी हाँ बिल्कुल है, कितना है 22/7। इसके साथ हम फिर पूछते हैं क्या हमारे पास आर का वैल्यू है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने पुट किया था 5.25 वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। तो किस चीज़ का वैल्यू आपके पास नहीं है, वो है स्लेंट हाइट एल का वैल्यू। तो अगर हमें CSA फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले एल का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एल का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। समझ गए बच्चे। सो ये हो जाएगा आपके पास 22/7, और पाई का वैल्यू पुट किया आपने 5.25, और इसके साथ में जो L है बच्चे उसको हमने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें H का वैल्यू आपके पास 3, so 3 स्क्वायर बिकम 9 एंड R इज 5.25 एंड स्क्वायर ऑफ 5.25 बिकम 27.5625। ऐड करेंगे बच्चे, ऐड होके कितना मिल जाएगा आपको, स्क्वायर रूट 36.5625, जो कि किसके इक्वल होता है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ये इक्वल आएगा 6.05 के। तो बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमें जो आंसर मिल रहा है वो कितना है 99.825 मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें इसको जो हीप है इसको कवर करना है कैनवास से, तो उस कैनवास का एरिया जो इसको पूरे को कवर कर लेगा कितना होना चाहिए 99.825 मीटर स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास। ओके, सो बच्चे इसी के साथ ये एक्सरसाइज तो हमारी यहीं पे फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.8 के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।